Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God of Israel. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your name, Jesus. Bless your name. Bless your name. Lord, we bless your name. Bless your name. Bless your name, Lord Jesus. Hallelujah. We bless your holy name, King of glory. Hallelujah. Shalom and greetings to every one of you in Jesus' matchless name. Hallelujah. Lord is gracious, Lord is kind, Lord is merciful. Hallelujah. Hallelujah. Sharon, I sent you the request. Kindly accept and show up, please. Sharon is going to sing a song with us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Or you send me the invite. I'll accept you. I already sent you one. Father, we bless your holy name. Father, we come before your throne of grace and mercy through the blood of the Lamb, Father. Thank you, Father, for your healing presence. Thank you for healing us all. Thank you for restoring us to good health, Lord, optimal health, the divine health, Lord, that you purchased for us. We give you praise, Lord. We give you glory. Hallelujah. We bless you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Sharon, are you finding it hard to join? Hallelujah. All right. I think you can show up now. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sabhi aa jaiye. We have a wonderful time. We are going to have a wonderful time in the Lord. And God is really going to talk to your hearts. परमेश्वर आपके दिल की गहराइयों से बात करेगा आज. और यीशु मसीह के नाम में मैं महसूस कर रहा हूं कि वो आपके जीवनों को बदलेगा. Hallelujah. Sharon, it's showing still adding. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Lord, we praise your holy name. Merciful King of glory, we magnify your name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. तेरा धन्यवाद करते हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sharon, it is not seemingly looking possible. I did it 3 times. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I can see it's not coming. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
This is really terrible. I did it 3 times or 4 times rather. Hallelujah. Hallelujah. आइए मिलके प्रभु की आराधना करें. Hallelujah. Let us just worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. Hallelujah. आइए सब अपनी आंखें बंद करें. आराधना करूं, आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया चना करूं, तेरी आराधना करूं. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत. जीवन से मेरे तू महिमा पाए, हृदय से काम ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Father, in the holy name of your Son, Jesus of Nazareth, the name that is above every name, the most glorious name, most powerful, most magnanimous name, highly exalted name of Jesus of Nazareth, we come into your presence. Father, we come into your presence. We come to commune with you. We come to hearken unto your voice. We open our hearts, Lord. We open our soul. We open our whole being, Lord, that we receive from you. That you may, Lord, touch our hearts the way you touched us never before. खुदावंद, हम तेरे हजूर में आते हैं. हालेलुया. तेरे लहू के वसीला से तेरे हजूर में आते हैं. हालेलुया. लहू के वसीला से तेरे हजूर में आते हैं. खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र लहू को पुकारते हैं. यीशु मसीह, तेरे पवित्र खून को पुकारते हैं. तेरे पवित्र लहू के साए के नीचे आते हैं. हालेलुया. 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 तेरे पवित्र 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 लहू के साए के नीचे आते हैं. खुदावंद तेरे पवित्र पवित्र खून के साए के नीचे आते हैं. हालेलुया. तेरे पवित्र लहू के साए के नीचे आते हैं. यीशु मसीह, मैं तेरे लहू की हजूरी को खोलता हूं. यीशु मसीह, तेरे लहू की हजूरी को खोलता हूं. लॉर्ड, आई रिलीज the canopy of the blood of Jesus over this entire broadcast. Lord Jesus, you will bring many more on this telecast and you will speak to us. Lord Jesus, as we delve deeper into your word, Lord, that your spirit will move upon us in the mighty name of Jesus, in the holy name of Jesus of Nazareth. Hallelujah.
In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत सब्जेक्ट के ऊपर परमेश्वर के वचन में से शिक्षा देने जा रहा हूं, और इट इज कॉल्ड द बाम ऑफ गिलियड। गिलाद की औषधि, गिलाद की बाम। हालेलुया। मैं आपको कुछ बेसिक स्क्रिप्चर देता हूं। जब यूसुफ को बेचा गया उसके भाइयों के द्वारा इश्माएली मर्चेंट के हाथों में, तो आपको मालूम इश्माएली मर्चेंट क्या लेके जा रहे थे? अगर आप पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 37 वर्स नंबर 25, उत्पत्ति 37 का 25, वहां पे आप पाएंगे मर्चेंट लोग लेके जा रहे थे कैमल्स के ऊपर, ऊंटों के ऊपर लाद के स्पाइसेस, बाम एंड मर्ड। बाम ऑफ गिलियड वाज ए वेरी चीज थी जिसे संसार के लोग खरीदने के लिए आते थे। यूसुफ को जब बेचा गया तब उन ऊंटों के काफिले पे गिलाद की मरहम थी। आपको मालूम, याकूब जब अपने बेटों को वापस भेजता है यूसुफ के पास, जब बेंजामिन वापस आ जाता है, तो अपने धन्यवादी हृदय से याकूब अपने ही पुत्र, उसे मालूम नहीं कि मिस्र का जो सेकंड इन कमांड है, मिस्र का राजा है बड़ा, ना बेटा है। तो जेनेसिस चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, जेनेसिस 43 उत्पत्ति 43 के 11 में क्या लिखा है कि जेकब अपने बेटों के हाथ में क्या भेजता है? बेस्ट फ्रूट, ए लिटिल बाम, बाम ऑफ गिलियड, लिटिल हनी, स्पाइसेस, मर, नट्स एंड एलमंड। हालेलुया। बहुत सारी कीमती चीजें अपने पुत्र के हाथ भेजता है, अपने पुत्रों के हाथ। किसके लिए? जब उसे बेचा गया था तब भी ऊंटों की बैक के ऊपर बाम ऑफ गिलियड थी। अब याकूब भी अपने उस पुत्र के लिए, उसे मालूम नहीं कि वो उसका पुत्र है, गिलाद की मरहम भेजता है। हालेलुया। आपको मालूम है, आज आपको जरमाया का सरकास्टिक सवाल है, प्रॉफिट जरमाया का। जरमाया नबी की पुस्तक 8 अध्याय के 12 वचन में जरमाया कहता है, क्या गिलाद में कोई मरहम नहीं है? क्या गिलाद में कोई औषधि नहीं है? गिलाद की मरहम के विषय में बहुत सारी बातें हैं, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मरहम हर रोग की, हर मर्ज की दवा थी। यहां जोड़ती थी, ये इमोशनल साइकिक बीमारियां भी दूर करती थी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बड़ी अद्भुत बातें। सबसे पहले ये मेरी स्टेटमेंट सुनिए। हालेलुया। हमें इस घड़ी को जानना चाहिए जिसमें हम जी रहे हैं। मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब प्रचारक लोगों को, भविष्य वक्ताओं को, शेपर्ड्स को, गडरियों को, अगुओं को मालूम नहीं कि हम किस घड़ी में जी रहे हैं। दे हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सीजन दैट वी आर लिविंग इन। दे हैव नो क्लू द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। हमें जिज्ञासा होती है फ्यूचर को जानने की, इसीलिए प्रोफेटिक मिनिस्ट्री बड़ी बड़ी गर्म होती है। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री का बाजार, to know the future, but let me tell you, your future is in the past. अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, पुराने नियम में चलिए, बाइबल में आइए। परमेश्वर शुरू में खड़ा होकर अंत देखता है, अंत में शुरुआत नहीं देखता। यशाया कहता है, गॉड सीज द बिगिनिंग, गॉड सीज द एंड इन द बिगिनिंग। He stands in the beginning and sees the end. For him there is no time. He is beyond any limitation of time and space. Hallelujah. अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और रोमियो की पत्री 15 अध्याय, आप देखेंगे पुराने नियम में इजराइल की हिस्ट्री है। इजराइल है जो हमें बहुत गहरे सबक सिखा सकता है यदि हम अध्ययन करें। क्यों परमेश्वर ने इजराइल के इतिहास को लिखा? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, इसलिए लिखा ताकि जो गलतियां इस्राएल ने की वो हम ना करें। हम इजराइल की हिस्ट्री को जाने, समझें
वो इसलिए हमारे आगे मिसाल बने हैं ताकि हम अपने जीवन को उन खड्डों से, उन खतरों से, उन जोखिमों से, उन बुराइयों से, उन बदकारियों से, उन पिटफॉल से बचा सकें जिसमें बनी इसराइल गिरा। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट को आपको मालूम, आप यीशु मसीह के चेहरे की रोशनी में इंटरप्रेट करते हैं। ही इज ऑल थ्रू इन ऑल 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। यीशु मसीह की चेहरे की रोशनी में ओल्ड टेस्टामेंट इंटरप्रेट होता है, क्योंकि ये यीशु मसीह का रेवलेशन है, यीशु मसीह का प्रकाश है। आज मैं आपको, और प्लीज के ऊपर प्लीज अभी जितने लोग आप हो इसे शेयर करना शुरू करें, इसे साथ ही साथ शेयर करें ताकि ये वचन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। मैं आपको लेके जाना, आप बहुत गहरा, मैं संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूं, इसे आपने पूरे ध्यान। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आप निकालिए, मैंने आपको बताया ओल्ड टेस्टामेंट को यीशु मसीह के चेहरे की रोशनी में समझा जा सकता है। किसी ने कहा इन द ओल्ड न्यू इज कंसील्ड, इन द न्यू ओल्ड इज रिवील्ड। प्रचारक जो ये कहते हैं कि पुराना अलग और नया अलग है, दे डू नॉट नो। आपको मालूम, मार्सिनियन नाम का एक व्यक्ति था पहली सेंचुरी में, उस फॉल्स टीचिंग को मार्सियनिज्म कहा जाता है, जिसने ये बताना शुरू किया कि ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट का परमेश्वर याहवे बहुत क्रूअल है, बहुत गॉड ऑफ, ही इज अ ट्राइबल गॉड ऑफ वॉर, उसने ये कहा। और न्यू टेस्टामेंट का गॉड जीसस अलग है। दैट इज अ फॉल्स खंडन यूहन्ना अपनी पत्री में कर, टीचिंग जो पहली सदी में शुरू हो गई, जिनका खंडन प्रेरित कर रहे हैं वचन के अंदर। हालेलुया। मैं आपको लेके चलना चाहता हूं, मेरे साथ जल्दी से सबसे पहले निकालें दूसरा तिमोथियस, सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथियस और उसका 4 अध्याय। इसका कुछ हिस्सा मैंने आपको पहले बताया है प्रचार में, लेकिन कुछ अलग बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और हम एक बहुत अद्भुत परमेश्वर का संदेश आज ग्रहण करेंगे। तिमोथियस की पत्री, दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय का पहला वचन देखिए। पौलुस तिमोथियस को क्या लिखता है? आई चार्ज दी, क्या कहता है? आई चार्ज दी देयरफॉर बिफोर गॉड एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु शैल जज द क्विक एंड द डेड एट हिज अपीयरिंग एंड हिज किंगडम। जुडिशियल टर्मिनोलॉजी, मैं तुझे चार्ज करता हूं, हालेलुया, आग्रह करता हूं, तुझे ऑर्डिनेंस देता हूं, डिवाइन ऑर्डिनेंस, बिफोर गॉड एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु शैल जज द क्विक एंड द डेड एट हिज अपीयरिंग। परोसिया का मतलब यीशु मसीह की आमद। यीशु मसीह की आमद की शिक्षा को परोसिया कहा जाता है। तो यीशु मसीह की आमद और यीशु मसीह के न्याय की बात कर रहा है प्रेरित, यीशु मसीह के न्याय की और यीशु मसीह की आमद की। और क्या कहता है सेकंड वर्स में? प्रीच द वर्ड, बी इंस्टेंट इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। कहता है परमेश्वर के वचन का प्रचार कर, हर समय तैयार रहे, ऋतु में तैयार रहे और बिना ऋतु के भी तैयार रहे। और क्या कहता है? रिप्रूव, लोगों को ताड़ना कर। when people are moving on the wrong path, they are holding unto erroneous doctrine, he is saying reprove them, confront them. He is talking about tough love. You know, today in the churches, they just want to motivate you, they just want to present you word of God that is offensive. Paul the apostle says, if I continue to please men, then where is the offense of the cross? The true teaching of the cross of the Lord Jesus Christ is certainly going to offend you. Paul तिमोथी को लिखता है, reprove, rebuke. You have to rebuke who are walking in ungodliness and professing to be Christians. Exhort with all long suffering, और लोगों को दिलासा भी दे, लोगों को तसल्ली भी दे, with all long suffering. Macrothumia is the Greek word.
मैक्रोटूमिया, ग्रेट पेशेंस, ग्रेट पेशेंस के साथ क्या कर, यहां पे लिखता है विद ऑल लॉन्ग सफरिंग एंड डॉक्ट्रिन। आपको मालूम डॉक्ट्रिन के लिए बाइबल में ओवर ओवर पॉल ने अपनी एपिसल्स में ओवर 70 टाइम्स डॉक्ट्रिन की बात की है, तालीम की, शिक्षा की। ग्रीक वर्ड है डिडास्कलिया, डॉक्ट्रिन, शिक्षा, तालीम। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि वचन की शिक्षा क्या है, वचन की आधारभूत फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन क्या है। सो दे आर मूव्ड बाय एवरी विम्सिकल टीचिंग। क्या कहता है? लॉन्ग सफरिंग। आपको मालूम प्रेरित पौलुस के पास बहुत लॉन्ग सफरिंग थी, पेशेंस लोगों के लिए, लेकिन पौलुस के पास फॉल्स टीचर के लिए कोई पेशेंस नहीं थी। उसने फॉल्स टीचर्स को रिब्यूक किया, उनकी ताड़ना की, उनकी गलत शिक्षा को डांटा प्रेरित पौलुस ने, और यीशु मसीह ने भी। मैंने आपको बताया जो यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है, बाइबल में हिब्रू कैनन में और ग्रीक कैनन में चैप्टर डिवीजन नहीं है। पूरी की पूरी बुक एक फ्लो में चल रही है, चैप्टर में, अध्यायों में नहीं बांटा गया कलाम को। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश है वो 5 अध्याय से शुरू होता है। मत्ती 5, 6, 7 में यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश ही दे रहे हैं। पहाड़ी उपदेश का पहला हिस्सा बड़ा मीठा मीठा लगता है, ब्लेसेड आर, ब्लेसेड आर, ब्लेसेड आर। लेकिन चैप्टर नंबर 6 में जाइए, 7 में जाइए, प्रभु यीशु मसीह फरीसियों, सदूकियों, जो टेलमुडिक जूडाइज्म को प्रीच करते थे, जो गमारा और मिशना की शिक्षा देते थे, जो डार्क बेबीलोनियन टैलमुड लोगों को सिखाते थे, और जिन्होंने यहोवा के कलाम, यहोवा का सच्चा कलाम नहीं सिखाते थे, मिशना, टैलमुड, गमारा ये सिखाते थे। हलागा और हगाडा 2 डिवीजन थी उनकी। उन्होंने ऑरल लॉ को, वो ये मानते थे कि यहोवा ने मूसा को अपने नियम 2 टैबलेट्स पे लिखकर भी दिए, लेकिन यहोवा ने मूसा को अपने नियम मुंह जवानी भी दिए, ऑरली भी दिए। और जो मूसा को यहोवा ने अपने नियम मुंह जवानी दिए, उनकी वैल्यू लिखित कलाम से ज्यादा है। और उस जो कलाम था, जब वो बेबीलोन में चले गए 70 साल, 70 ईयर्स कैप्टिविटी में रहे, उन्होंने एरामिक में, बेबीलोनियन एरामिक में इसे दोबारा इंटरप्रेट किया कलाम को। पूरे कलाम को उन्होंने नए सिरे से लिखा, और वहां पे डार्क टैलमुड तैयार हुआ, शैतानी टैलमुड, शैतानी शिक्षा। फिर गमारा उसकी इंटरप्रिटेशन बनाई। फिर उन्होंने, प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे बताइए ललित जी, हियर, हालेलुया। और उन्होंने रब्बियों की शिक्षा को, रबिनिकल ट्रेडिशन को परमेश्वर के कलाम के ऊपर कर दिया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैथ्यू में अगर आप पढ़ते हैं तो मत्ती की इंजील में 9 बार यीशु मसीह कहते हैं, इट इज सेड बट आई से, इट इज सेड बट आई से, इट इज सेड बट इट इज रिटन। हालेलुया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूं? आई विल हैव टू लीव दिस प्लेस देन। Hallelujah. Let me check. Let me just check. Hallelujah. Let me just check one moment. Hallelujah. I am going to move outside. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the holy name of the Lord. 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 Is it better now? Is it better? Please let me know if the internet is better. Hallelujah. Please let me know. अभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? Hallelujah. Is it still there? Still network problem? Let me just switch over to the other SIM.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Is it okay now? Is it okay? Now it's fine. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the holy name of the Lord. Hallelujah. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने पहले ही संदेश में इन हिज वेरी फर्स्ट मैसेज, लोग तो बहुत फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स समझते हैं सरमन ऑन द माउंट को, पर पढ़िए चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, देन यू विल फाइंड जीसस हैड जीरो टॉलरेंस फॉर फॉल्स टीचर्स. जीसस हैड जीरो टॉलरेंस फॉर फॉल्स प्रॉफिट्स. वही बात पौलुस लिखता है. हालेलुया. कहता है exhort, rebuke people patiently, but both Jesus and Paul showed no tolerance with the false prophets. आपको मालूम, मैं पढ़ रहा था एक रिसोर्स, स्कॉटलैंड में एक फॉल्स टीचिंग थी. वो थी कि जैसे मिस्र में हर घर के लिए एक मेमना कुर्बान गया और के लहू के द्वारा फैमिली का एक मेंबर बचाया गया, फर्स्ट बॉर्न. इसलिए अब भी एक ही मेंबर प्रभु में बचता है, बाकियों को बॉर्न अगेन होना पड़ता है. एवरीबॉडी नीड्स टू बी बॉर्न अगेन. ये स्कॉटलैंड में एक फॉल्स टीचिंग थी. हालेलुया. तो यहां पे प्रेरित पौलुस क्या कहता है, आगे चलिए. दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसका 3 वचन क्या कह रहा है प्रेरित पौलुस. अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने खुदा के बंदे थे, जिर्मिया जो था, अभी हम जिर्मिया में आगे जाएंगे. जब जिर्मिया नबूवत करता है, जिर्मिया एक सच्चा नबी जिस समय में वो जी रहा होता है, केवल उस समय को नहीं देखता. जो सच्चा नबी होता है वो आने वाले युगों को देखता है, एंड डेज को देखता है. साल पहले के समय को नहीं देख रहा भाई और बहनों. प्रेरित पौलुस इस टाइम को, तीसरा वचन, फॉर द टाइम विल कम व्हेन दे विल नॉट एंडोर साउंड डॉक्ट्रिन. समय आएगा जब क्रिश्चियन विश्वासियों को साउंड तालीम नहीं चाहिए, कलाम की सच्ची शिक्षा नहीं चाहिए. वो कलाम नहीं चाहिए जो उनके जीवन को सिद्ध करेगा, जो उनके जीवन को धोएगा. वो निर्मल पानी का सोता नहीं चाहिए जो कटाई करेगा, छटाई करेगा, शरीर शरीर के कामों को कांटे छाटेगा. वो कलाम नहीं चाहिए, साउंड डॉक्ट्रिन नहीं चाहिए लोगों को. समय आएंगे व्हेन पीपल विल नॉट एंडोर, सह नहीं पाएंगे लोग. आज लोगों से सह नहीं होता सच्चा कलाम. ब्लेस मी पापा, ब्लेस मी पापा, heaven is going to open, showers of blessing are coming. How you can, अभी कोई पास्टर पंजाबी इन्वेस्ट इन गोल्ड, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज बताते हैं लोगों को. हाउ टू ग्रो इन द लॉर्ड, हाउ टू बिकम वेल्दी इन द लॉर्ड. प्रभु कहता है पृथ्वी पे अपने लिए धन मत जोड़ो. डू नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ फॉर योरसेल्फ ऑन द अर्थ. डू नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ फॉर योरसेल्फ ऑन द अर्थ. दैट्स व्हाट जीसस सेज. यहां पे लिखा साउंड डॉक्ट्रिन वो एंडोर नहीं करेंगे, बट आफ्टर देयर ओन, बट आफ्टर देयर ओन लस्ट दे विल हीप अप देमसेल्व्स टीचर्स. वो अपनी लस्ट, अपनी अभिलाषा के ढूंढेंगे, फॉल्स अपोस्टल्स ढूंढेंगे, फॉल्स बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी प्रोफेसियां देते हैं. यू आर गोइंग टू हैव रियल एस्टेट, यू आर गोइंग टू हैव अ बिग बिजनेस, यू आर गोइंग मासराती.
हालेलुया। सबको सुनाई दे रहा है प्लीज? क्या आपको सुनाई दे रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ओके, the enemy doesn't want people to hear the word. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Can you hear now? Can you hear me now? आपको सुनाई दे रहा है? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. मैं थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करता हूं। हालेलुया। अभी आपको सुनाई दे रहा है? अभी आपको सुनाई दे रहा है? यस यस यस, हालेलुया। सेंड मेनी yeses so that I know that you hear me. हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो क्या लिखा है यहां पे? सुने ध्यान से। प्रेरित पौलुस कहता है, वो नए नए टीचर्स के पीछे भागेंगे। अपने फेवरेट प्रॉफिट अपोस्टल, पापा जी, भविष्यवाणी करने वाले, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें बताने वाले, उनके पीछे भागेंगे। हीप अप टीचर्स आफ्टर देयर ओन लस्ट, अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार अपने लिए गुरु, टीचर इकट्ठा करेंगे। प्रभु के भेजे हों कि नहीं सुनेंगे? हालेलुया। माय पिक्चर इज नॉट क्लियर, दैट्स ओके। आपको वचन की आवाज आ रही है बस, दैट्स फाइन। हालेलुया। क्या लिखा है? अपनी अभिलाषा के लिए गुरु ढूंढेंगे। और आगे क्या लिखा है? हैविंग इचिंग ईयर्स। कैसे कान होंगे? खुजली वाले कान। उनको जीवन नहीं बदलना, जीवन बदलने वाला कलाम नहीं चाहिए। उनका यीशु मसीह के संग रिश्ता गहरा नहीं चाहिए। यीशु मसीह के संबंध नहीं चाहिए। उनको केवल कानों की खुजली। आपको मालूम यहां पे ग्रीक वर्ड है किनीथो। जब व्यक्ति वो बातें सुननी चाहता है जिसे वो पसंद करता है। लोग आज, भाई और बहनों, वो सुनना चाह रहे। उसने 2000 साल पहले ये भविष्यवाणी कॉन्टेक्स्ट में लेके चला। लोगों को कानों की खुजली के लिए नए नए शिक्षक चाहिए, जो प्रोफेसी करें बढ़िया बढ़िया, उनके विषय में अच्छी अच्छी बातें बोलें। उन्हें अच्छी अच्छी क्या प्रीच करते हैं आजकल लोग? अरे तौबा कर लो, प्रभु के संग चलो, प्रभु आपको बहुत बरकत देगा, बड़ी आशीष से भर जाओगे। वो नहीं बताएंगे अपने आप का इनकार करो। वो नहीं बताएंगे शरीर की वासना को क्रूस पे चढ़ाओ। वो नहीं बताएंगे तंग मार्ग से प्रवेश करो। सकरा मार्ग, थिलिप्सिस का मतलब है नैरोपाथ। थिलिप्सिस का मतलब है परसिक्यूशन, सफरिंग, पीड़ा, कष्ट। और क्रूस उठाओ और सेल्फ डिनायल, अपने प्रमोशन। जिनके पीछे वो चल रहे हैं वो बिलीव करते हैं सेल्फ प्रमोशन में। वो उनको सेल्फ डिनायल कैसे सिखाएंगे? तो क्या लिखता है आगे प्रेरित पौलुस? हैविंग इची ईयर्स दे शैल टर्न अवे देयर ईयर फ्रॉम द ट्रूथ। वो अपने कान सत्य से मोड़ लेंगे। ये वचन ध्यान से सुनिए। ये प्रेरित पौलुस भविष्यवाणी कर रहा है। दे शैल टर्न अवे देयर ईयर्स फ्रॉम द ट्रूथ एंड शैल बी टर्न्ड टू फेबल्स। वो अपने कान सत्य से, मैं देख रहा हूं लोगों को,
remaining. अभी बताइए, आपको सुनाई दे रहा है अभी? Tell me how it is now. I'm going on the rooftop now. Hallelujah. अभी कैसा दिखाई दे रहा है? Can you hear me? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं छत के ऊपर हूं. हालेलुया. अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा है? प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. प्लीज यस यस करके मैसेज भेजें. कैन यू हियर मी एंड सी मी? आज आपने जाना नहीं है. यीशु मसीह के नाम में आपको आग्रह कर रहा हूं. ये बहुत ज्यादा जरूरी पैगाम है. मैं आपको बता रहा हूं, मेरी आत्मा बता रही है. ऑडियो वाला मोड अब करूंगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. अगर ऑडियो मोड करूंगा तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा. सारा का सारा दोबारा से करना पड़ेगा. हालेलुया. सुने ध्यान से, प्रेरित पौलुस क्या कहता है. प्रेरित पौलुस एक बहुत सोबर वार्निंग दे रहा है. इट इज वेरी स्केरी व्हाट पॉल इज सेइंग. कलीसिया की बात कर रहा है प्रेरित पौलुस. संसार की, जगत की बात नहीं कर रहा है. प्रेरित पौलुस कलीसिया के विषय में बता रहा है, ये काम लोग करेंगे, लेकिन तू खड़े होके सच्चा कलाम देना, तैयार रहना, लोगों को रिब्यूक करना, लोगों को डांटना, लोगों की ताड़ना करना, लोगों को सच्चा परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना. चिकनी चुपड़ी बातें मत करना. अपनी कलीसिया को बढ़ाने की कोशिश मत करना कि नंबर ऑफ पीपल ग्रो कर जाएं. सेलिब्रिटी स्टार बनने की कोशिश मत करना. लोगों के अंदर पॉपुलर होने की कोशिश मत करना. मेरे सच्चे पैगाम को फैलाना. प्रभु अपने दास को क्या कह रहा है? कह रहा है, लोग वे विल नॉट एंडोर साउंड डॉक्ट्रिन. उनको सच्ची शिक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में लस्ट है, वासना है. और उनको वैसे गुरु चाहिए जो उनकी लाइफस्टाइल को सूट करें, उनके जीवन को सूट करें. उन्हें वैसा पैगाम दें जिससे वो पाप में, अधर्म में, गंदे कामों में, जनाकारी में, लस्ट में अपना जीवन समाप्त कर लें. और प्रेरित पौलुस कहता है चौथे वचन में, पहले कहता है इचिंग ईयर्स, किनीथो, वही सुनना चाहेंगे. जोर लगा लो, वो सच्चा कलाम नहीं सुनेंगे. और कहता है दे शैल टर्न अवे, दे शैल टर्न देयर ईयर्स अवे फ्रॉम द ट्रूथ. दैट इज अ वेरी सीरियस वार्निंग. ऐसे लोग अपने कान मोड़ लेंगे सच्चाई से, झूठ को सुनेंगे. और क्या लिखा है? एंड शैल बी टर्न टू फेबल्स, फेबल्स की ओर मुड़ जाएंगे. पहला वर्ड है किनीथो, कानों की खुजली. दूसरा शब्द यहाँ पे ग्रीक में है मूथोस, जहां से शब्द निकलता है मिथोलॉजी. उनको मिथोलॉजी, मिथोलॉजिकल बातें पसंद आएंगी. वो सुनेंगे प्रीचरों से मोटिवेशनल प्रीचिंग, मोटिवेट करेंगे उन्हें. वो सुनेंगे साइकोलॉजी, वो सुनेंगे मेटाफिजिकल साइंस, वो सुनेंगे लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन. सच्चा कलाम नहीं सुनेंगे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सच्चा कलाम. हालेलुया. ये बात प्रेरित पौलुस बता रहा है. इचिंग ईयर. हालेलुया. अपने दिल की, हार्ट की डिजायर के अनुसार सुनेंगे, और सच से, सच्चाई से लोग दूर चले जाएंगे. ट्रूथ से धीरे 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 दूर चले जाएंगे. सत्य उन लोगों के पास रहेगा. हालेलुया. सच्चाई उनके पास नहीं रहेगी. आपको मालूम, मैंने आपको बताया, आपका भविष्य आपके भूतकाल में है. योर फ्यूचर इज इन द पास्ट. हालेलुया. ये जो बाइबल देख रहे हैं आप, इसे अध्ययन करें, इसे अध्ययन करें. पुराने नियम में घुस जाइए. उसके अंदर फ्यूचर है, आपके जीवन की एक एक बात लिखी है, संसार में जो जो घटने जा रहा है. मैं आपको बताना चाहता हूं. हालेलुया. प्रेरित पौलुस जो बात कर रहा है, प्रेरित पौलुस ये बात कर कहां से रहा है? कौन से परमेश्वर के नबियों की शिक्षा आगे दे रहा है प्रेरित पौलुस? तो मैं चाहता हूं आप जल्दी से मेरे साथ निकालें यिर्मयाह नबी की पुस्तक. यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय.
हालेलुया। जिर्मिया चैप्टर नंबर 7। सुनिएगा बड़े ध्यान से, कान खोल के परमेश्वर के जिंदा कलाम को। जिर्मिया नबी की किताब, उसका पहले मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जिर्मिया में से बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, वेरी वेरी पॉइंटेड स्टेटमेंट। और जिर्मिया, आपको मालूम ये बात कब कह रहा है? जिर्मिया ये बात तब कह रहा है जब इज़राइल बेबीलोनियन कैप्टिविटी में चला गया। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर खूबसूरत आलीशान हैकल को लूट के ले गया। 3 बार आया, 3 साल, 3 अटैक किए उसने, तीनों बार लूट के ले गया। जिर्मिया भविष्यवाणी करता रहा, जिर्मिया की किसी ने नहीं सुनी। झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे थे उस समय, यहोवा हमारे संग है, यहोवा हमारी ढाल है, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा, यहोवा हमारा बल है, यहोवा अपने शत्रु को कुचल देगा। ऐसी झूठी भविष्यवाणी कर रहे थे उस राजा के आगे, ज़िदकिय्याह के आगे। और वो उनकी सुनता था, जर्मिया की नहीं सुनता था। जर्मिया जेल में डाला जाता था। सच्चा नबी, झूठे नबी राजा के दरबारी थे, झूठी नबूवतें करते थे। जर्मिया की नबूवतें सच्ची हुई, झूठे नबियों की नबूवतें झूठी ठहरी। लेकिन इज़राइल गुलामी में चला गया। याजक और लेवी हैकल के अंदर इजरायली प्रजा को पुकार पुकार के कह रहे थे, यहोवा इस हैकल में विराजमान है, ये टेम्पल ऑफ गॉड है, यहां यहोवा रहता है, इधर दुश्मन नहीं घुस पाएगा। उसी टेम्पल के अंदर दुष्ट नबूकदनेस्सर, पेगन राजा घुसा, सब कुछ लूट के ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट के ले गया। मैं एक वचन देना चाहता हूं आपको, बहुत हॉरिफिक वचन है ये। जिर्मिया नबी की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 20 वचन। जिर्मिया चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स नंबर 20। सुने क्या कह रहा है यहाँ पे। ये जिर्मिया विलाप कर रहा है। जिर्मिया वो नबी है जिसकी आंखों से पानी का झरना बहता था। ए प्रॉफिट ऑफ लेमेंटेशन। यू नीड ए प्रॉफिट ऑफ लेमेंटेशन। You don't need celebrities in the church. You don't need so many big names. You put them on a very high pedestal. You deified the leaders, the pastors, the prophets, the teachers, the shepherds. You deified them, made God out of them. देखिए क्या कहता है यहाँ पे यिर्मयाह, बहुत खतरनाक वचन बोल रहा, दुख से, सोग से, विलाप से भरे। यिर्मयाह कहता था, हार्वेस्ट इज पास्ट एंड द समर इज एंडेड एंड वी आर नॉट सेव्ड। कहता है फसल का समय बीत गया और ग्रीष्म ऋतु, गर्मी भी चली गई, पर हम तो बचाए नहीं गए। आपको मालूम यिर्मयाह क्या कह रहा है? यिर्मयाह वही बात कह रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के अंदर, वो 5 मूर्ख कुंवारियां, उनके कुप्पियों में तेल नहीं था। ये है कुप्पी, ये शरीर कुप्पी है, तेल नहीं था। तेल नहीं था, रोशनी नहीं थी। रोशनी तेल से पैदा होती है। आपको यीशु मसीह की रोशनी में चलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप उठाए जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह आए, आपके इधर आपका पूरा तन बदन रोशनी होना चाहिए। अगर अंधेरा है तो आप उठाए नहीं जाएंगे। पाप अंधेरा है, धार्मिकता, पवित्रताई, सच्चाई, सदाकत, परमेश्वर का जीवित कलाम रोशनी है। आपको लाइट चाहिए। वो लाइट दूल्हा देखेगा आपके अंदर। उन 5 बुद्धिमान कुआरियों के अंदर लाइट थी, रोशनी जल रही थी। दूल्हा उन्हें ले गया। ये यिर्मयाह रो रहा है, कह रहा है कि रैप्चर तो हो गया, कलीसिया तो उठा ली गई, हाय हम तो रह गए। कभी आपने सुना किसी प्रचारक ने आपको बताया हो कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी और कलीसिया का एक हिस्सा रह जाएगा? बड़ी हैरानी की बात, रैप्चर की बात की, कलीसिया को उठाए जाने की बात की। सुने उसने क्या कहा? उसने कहा 2 चक्की पीसती होंगी, एक उठाई में सो रहे होंगे, एक उठाया जाएगा। 2 खेतों में काम कर रहे होंगे, एक उठाया जाएगा। फिर उसने जब 10 कुआरियों की मिसाल दी, तब भी 5 उठाई गई। यीशु मसीह 50% रिजल्ट बता रहा है। चर्च का आधा हिस्सा अपोस्टेट है, कलीसिया का आधा हिस्सा अधर्म, पाप से भरा है। वो कानों की खुजली वाले गुरु चाहता है। उसे साइकोलॉजी चाहिए, मेटाफिजिक्स डॉक्टर चाहिए, प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग चाहिए, सच्चा कलाम नहीं चाहिए, क्योंकि वो सह नहीं सकते। यिर्मयाह बता रहा है, कहता है, द हर्ट ऑफ द डॉटर ऑफ माई पीपल, आई एम हर्ट, आई एम
ब्लैक एस्टोनिशमेंट हैज टेकन होल्ड ऑफ मी। वो विलाप कर रहा है जर्मिया कि जो सियोन की बेटी है यरूशलेम, उसके दुख से मेरा दिल पीड़ा से भरा है। और क्या कहता है, इज देयर नो बाम इन गिलियड, इज देयर नो फिजिशियन देयर, व्हाई देन इज नॉट हेल्थ ऑफ द डॉटर ऑफ माय पीपल रिकवर्ड। क्या गिलाद में कोई मरहम नहीं है, क्या इज़राइल में कोई चंगा करने वाला नहीं है, ये प्रश्न कर रहा है इज़राइल की दुर्गति को देख के। खुदावंद का सच्चा खादिम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पढ़िए कि क्या बात कर रहा है खुदावंद का खादम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दुर्दशा है क्यों। आइए परमेश्वर के कलाम में पढ़िए, जर्मिया नबी की किताब में उसके 7 अध्याय में, नंबर 7 प्लीज, वर्सेस अध्याय। क्यों यह दुर्दशा हुई, प्रेरित होगा, क्यों होगा, सुने ये भेद। जिर्मिया 7 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ें। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम अनटू जरमाया फ्रॉम द लॉर्ड। ये होता है नबी जिसके पास यहोवा से कलाम आता है, समझ रहे हैं? वो खुदा के संग जुड़ा होता है, हेवन के साथ। वो मर्चेंडाइज नहीं करता, समझ रहे? वो अभिषेक को पानी पे, तेल पे, कपड़ों पे उतार के कभी नहीं बेचता। वो होता है उसका सच्चा खुदा का सच्चा खादिम। और उसके पास हेवन से यहोवा बोलता है और कलाम उतर के आता है। 3 तरह से नबी पैदा होता है। आज अभी नहीं मैं बताऊंगा आपको, मैं अभी इसी अपने सब्जेक्ट के साथ स्टिक करना चाहता हूं। खुदावंद इन द गेट ऑफ द यहोवा परमेश्वर के हैकल के गेट के आगे क्या हो, खड़ा हो जा। स्टैंड इन द गेट ऑफ द लॉर्ड्स हाउस एंड प्रोक्लेम देयर दिस वर्ड। और वहां पे हैकल के, टेंपल के गेट के आगे खड़ा हो जा और वहां पे खड़ा होके ये वचन क्या है। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कुछ गहरी बातें आपको बताना चाहता हूं। आप कैसे जानेंगे कि आप उस जगह पहुंच गए हो जिसे हम कहें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से आप यहोवा की ओर वापस नहीं लौट सकते? आप कैसे जानेंगे कि अब आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो अगर आप लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि लोग उस पॉइंट से आगे निकल चुके हैं, अब वो वापस लौट नहीं सकते। आप कैसे जानेंगे? हाउ वुड यू नो दैट यू हैव रीच टू दैट पॉइंट? कैसे वहां आप कैसे जानेंगे? God himself, प्रभु बता सकता है। वो लोग जो अपने मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं, वो लोग जो अपने मुंह से परमेश्वर का दम भरते हैं, वो लोग ऐसी ऐसी सीमा पे आके कैसे खड़े होंगे, वो सीमा को कैसे लांग गए जहां से अब वो प्रभु की ओर वापस लौट नहीं सकते। ये संदेश है जर्मिया का भी, मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग वो रेखा लांग चुके हैं कि अब यहोवा उन्हें बचाएगा नहीं। ये नहीं कि यहोवा बचा नहीं सकता, पर यहोवा बचाएगा नहीं। हम्म आप ये मत सोचिए कि अभी तुरंत आने वाले दिनों में होलसेल रिपेंटेंस हो जाएगा, होलसेल में तौबा करके सारा संसार बचाया जाएगा। ये मत समझिए। सुनिए जिर्मिया क्या कह रहा है, देखिए जिर्मिया क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से वचन को समझिए, वचनों में क्या लिखा है परमेश्वर के। सुनिए जिर्मिया क्या कहता है। प्रभु कहता है जिर्मिया को, स्टैंड इन द गेट ऑफ द लॉर्ड्स हाउस एंड प्रोक्लेम देयर द वर्ड। ये कलाम बोल वहां जाके, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। नबी वो होता है जो प्रभु की ओर से उसे वचन दिए जाते हैं। नबी वो नहीं होता, खड़ी हो जा हरे सूट वाली बहन, तुझे ये हो रहा है, तू खड़ा हो जा, तुझे वो हो रहा है, प्रोफेसर पापा, ये नहीं होते नबी। सुन लीजिए, यहां पे लिखा है, प्रभु से कहता, प्रोक्लेम देयर द वर्ड एंड से, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड ऑल ई ऑफ जूडा दैट एंटर इनटू दीज गेट्स टू। यहूदा के गोत्रों, बेंजामिन और यहूदा, तुम जो इस भवन के अंदर यहोवा के उपासना करने के लिए आते हो और इन फाटकों में से प्रवेश करते हो, सुनो, दस सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है। क्या कहता है यहोवा परमेश्वर? अमेंड योर वेज एंड योर डूइंग्स। अपने मार्ग सीधे कर लो और अपने बुरे काम त्याग दो। एंड आई विल कॉज यू टू ड्वेल इन दिस प्लेस। तब मैं तब मैं तुम्हें इस देश में रहने दूंगा।
ट्रस्ट ई नॉट इन डिसेप्टिव वर्ड्स, धोखा देने वाले झूठे शब्दों पे विश्वास मत करना। क्यों इजराइल का पतन हुआ मालूम आपको? नबूकदनेस्सर गुलाम बना के ले गया, 70 साल की सजा मिली, 70 को फिर यहोवा ने 7 गुना मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहोवा ने 7 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। 14 मई 1948 को वो सजा टूटी इजराइल की और इजराइल देश बना। 2680 साल के करीब दंड भोगा उन्होंने। यहां से, इस पॉइंट से क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है तुमने ट्रस्ट किया झूठे नबियों को, झूठी शिक्षा देने वालों को, झूठे प्रचार, ई नॉट इन द लाइंग वर्ड्स, द डिसेप्टिव वर्ड्स, झूठे शब्दों पे, भ्रम, धोखा देने वाली तलीमी, बड़े प्रचारक उठ रहे हैं ऑनलाइन, इतनी झूठी शिक्षा का, तालीम का बाजार गर्म है, मैं आपको बता नहीं सकता। यीशु मसीह विरोध में था झूठे शिक्षकों के, पौलुस विरोध में था। मैं भी यीशु मसीह का सच्चा चेला हूं, मेरा भाई, बड़ा भाई पौलुस, deceptive word saying the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord, प्रभु का भवन है, प्रभु का भवन है, प्रभु का भवन है, यही द चर्च ऑफ गॉड, द चर्च ऑफ गॉड, द चर्च ऑफ गॉड है, प्रभु का जीवन के अंदर हर प्रकार की बुराई छिपी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कहते हैं परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का घर है, टेम्पल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड है, ये कहते हैं परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का भवन। डिसेप्टिव वर्ड्स, धोखा देने वाले शब्द। हालेलुया। प्रभु कहता है सच्चे मार्ग पे चलो, अपने बुरे काम त्यागो, एक दूसरे के प्रति न्याय करो। मसीह लोग एक दूसरे के संग, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हालेलुया। अभी भी है नेटवर्क प्रॉब्लम? थैंक यू जीसस। लेट मी जस्ट वॉक अराउंड। अभी भी है नेटवर्क प्रॉब्लम? बताइए मुझे। हालेलुया। को सुनाई दे रहा है? मैसेज कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वेट, सुनाई दे रहा है? अब मुझे लग रहा है कि सुनाई दे रहा है। मुझे आपके मैसेज दिख रहे हैं। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। हालेलुया। अब सुनाई दे रहा है? थैंक यू जीसस। सुनाई दे रहा है आपको? और हालेलुया। मैं छत पे हूँ, रोशनी भी नहीं है, नो वॉइस। सुनाई दे रहा है? हालेलुया। सुनाई दे रहा है आपको? यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। देखिए यिर्मयाह क्या कह रहा है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या लोग उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं जहां पे वो वापस न लौट सकते हो? यिर्मयाह देखिए क्या कह रहा है। यिर्मयाह बता रहा है कि लोगों ने डिसेप्टिव शब्दों के ऊपर भरोसा किया, और यिर्मयाह कहता है अपना जीवन बदलो, अपना चरित्र बदलो। यिर्मयाह कहता है दूसरे के प्रति ईमानदारी। आपको मालूम है लोग कैसे हैं मसीहत में? एक दूसरे के संग न्याय नहीं करते, धोखा करते हैं, विश्वासी विश्वासी के साथ धोखा करते हैं और झूठ बोलते हैं। प्रभु कहता है मैंने ये जमीन, ये लैंड, ये देश तुम्हारे पुरखे इब्राहिम, इसहाक, याकूब को दिया, परपेचुअल कवनेंट बांध के, कि वो और उनकी औलाद, उनका वंश इस देश में रहे, हमेशा के लिए रहे। पर क्या कहता है? अभी कोई नो लिख रहा है बीच में, कोई यस लिख रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। सुनाई दे रहा है आपको? यस, हालेलुया। देखिए
सुने क्या कहता है प्रभु, मैं वचन पढ़ता हूं जल्दी से। प्रभु कहता है, धोखा देने वाले नबियों के शब्दों पे भरोसा मत करो। ये मत कहो ये टेम्पल ऑफ गॉड है, टेम्पल ऑफ गॉड है, टेम्पल, चर्च 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 में जा रहे हैं हम, ये मत बोलो। ये नहीं आपको बचाएगा। आगे पढ़ें। इफ यू थर्ली अमेंड योर वेज एंड योर डूइंग्स, इफ यू थर्ली एग्जीक्यूट जजमेंट बिटवीन अ मैन एंड हिज नेबर, इफ ई ओप्रेस नॉट द स्ट्रेंजर, किसी को ओप्रेस मत करो। फादरलेस, जो अनाथ है उनकी सुधि लो, एंड द विडो, विधवाओं की सुधि लो, एंड शेड नॉट इनोसेंट ब्लड इन दिस प्लेस, और निर्दोष लहू मत बहाओ, नीदर वॉक आफ्टर अदर गॉड्स टू योर ओन हर्ट, दूसरे देवताओं के पीछे मत जाओ। मूर्ति पूजा 3 अध्याय के 3-4 वचन में पढ़ लीजिए। काव्चसनेस क्या है? ग्रीड, मूर्ति पूजा। और मैंने कल बताया ग्रीड के लिए प्लेंटिकोस वर्ड है। ग्रीड, अभिलाषा, ख्वाहिशें अंदर। और कल मैंने आपको बताया मूर्ति पूजा क्या है? ग्रीड मूर्ति पूजा है, लालच मूर्ति पूजा है। और मूर्ति पूजा का आइडोलोलित्रिया ग्रीक वर्ड है। ईडो का मतलब देखना, लोलित्रिया उसकी सेवा करना। जो आप अपनी आंखों की अभिलाषा से देखते हो, उसकी सेवा करते हो, वो मूर्ति पूजा है। मूर्तियों के आगे झुकना ही मूर्ति पूजा नहीं है। प्रभु क्या कहता है? तुम दूसरे देवताओं के, will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your father forever and ever। ये जमीन तो हमेशा के लिए रहने के लिए दी गई थी। क्यों यहोवा ने बार बार खदेड़ा इन्हें? क्यों यहोवा ने उस हैकल को भी तुड़वा दिया? क्योंकि वो हैकल इनका धर्म थी, वो हैकल इनका मजहब थी, वो हैकल एक अडंबर बन गया था, बाहरी दिखावा। उसमें यहोवा वास नहीं कर रहा था। इजिकियल नबी की किताब पढ़िएगा, 6 से लेके 9 अध्याय। हैकल में गंदे काम किए जाते थे। पढ़िए इजिकियल 6 से 9। हैकल के अंदर, आज चर्च के अंदर गंदे काम है। कलीसिया व्यापार की मंडी है चर्च। चर्च एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन है। चर्च के अंदर राजनीति चल रही है। चर्च के पादरी लोग मंत्रियों के पैरोकार हैं। चर्च के अंदर हर तरह का बिजनेस कारोबार चलाया जा रहा है। देखिए प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है, 8वां वचन, बिहोल्ड ई ट्रस्ट इन लाइंग वर्ड्स दैट कैन नॉट प्रॉफिट। पर तुम झूठे नबियों के वचनों के ऊपर विश्वास करते हो। और 9वें वचन में क्या कहता है प्रभु? तुम ये कहते हो कि हम तो छूट गए, डिलीवर हो गए, बच गए, पर तुम बचे नहीं हो। हालेलुया। प्रभु कहता है, तुम कहते हो कि हम बच गए। क्या कहता है? विल यू स्टील, मर्डर, कमिट अडल्ट्री एंड स्वेयर फॉल्सली एंड बर्न इंसेंस अनटू बैल एंड वॉक आफ्टर द गॉड्स whom you know not। ये काम कर रहे हैं इजरायली। ये वचन टाइप करते जाएं, 8 वचन, 9 वचन, जिर्मिया 7 का 8-9। एंड कम एंड स्टैंड बिफोर मी इन दिस हाउस। तुम जनाकारी भी करते हो, हरामकारी भी करते हो, लुचपना भी करते हो, चोरी भी करते हो, ठगी भी करते हो, विधवा अनाथों का हक भी मारते हो, हर तरह का झूठ फरेब बोलते हो, हर तरह का गंदा घिनौना काम करते हो। और हैकल में आते हो और आके हैकल के अंदर खड़े होके कहते हो, एंड कम एंड स्टैंड बिफोर मी इन दिस हाउस विच इज कॉल्ड बाय माई नेम। मेरे घर में आके खड़े हो जाते हो, और वो तो मेरे नाम का घर है, मेरा घर है। वहां पे आके खड़े हो जाते हो, which is called by my name, and say, we have delivered to all these abominations। हम्म? हर तरह का गंदा घिनौना काम। 10 वचन टाइप कीजिए, 11 कीजिए। इज दिस हाउस विच इज कॉल्ड बाय माई नेम बिकम डेन ऑफ रॉबर्स इन योर आईज। क्या मेरा घर चोरों डाकुओं की खोनी बन गया? बिहोल्ड इवन आई हैव सीन इट, सेज द लॉर्ड। मैंने इसे देख लिया है, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है। तो प्रभु क्या कहता है? 12 वचन पढ़े। बट गो ई नाउ अनटू माई प्लेस विच वॉज इन शाइलो। सुने ध्यान से, 12 वचन टाइप करें। प्रभु कहता है इसराइल को, कहता अगर तुमने सबक सीखना है, अगर सच्चाई जाननी है, अगर मेरे मार्गों को समझना है, मैं कौन हूं, मेरी जात क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं कैसे काम करता हूं, अगर जानना चाहते हो ना मुझे, तो वापस जाओ, यहोवा इन्हें कह रहा है। 586 BC में इन्हें कह रहा है, कहां वापस चले जाओ? एली के समय में, एली सैमुअल के समय में चले जाओ।
सैकड़ों साल पीछे जाओ। और क्या कहता है, बट गोई नाउ अनटू माई प्लेस विच वॉज इन शाइलो, जो मैंने पहला घर बनाया था शिलो में, वहां जाओ। वेयर आई सेट माई नेम एट फर्स्ट, मैंने अपना नाम वहां भी रखा था। एंड सी वट आई डिड टू इट फॉर द विकेडनेस ऑफ माई पीपल इजराइल। शिलो में जो टेम्पल थी, जहां पे एली याजक था, उसके दोनों बच्चे बच्चे होपनी और फिनास लुच्चे थे। वो चढ़ाए जाने वाली पवित्र भेंटों को अशुद्ध करते थे और हैकल के ओसारे में औरतों के संग सहवास करते थे, सेक्सुअल इमोरालिटी कमिट करते थे। एली खा खा के मोटा ताजा हो चुका था। यहोवा ने एली और एली के खानदान का नाश किया, एक साधारण बच्चे को उठाया जिसका नाम सैमुएल था। यहोवा परमेश्वर पता क्या करता है, हारून के घराने की सेवा को काट देता है कई बार, और मलकी सिदक के घराने की सेवा लेकर आता है। हारून के घराने के पापों के कारण यहोवा उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। हारून ने मलकी सिदक याजक की भी एक पीढ़ी निकाल के रखी है, एक लाइन है उसके पास मलकी सिदक की। हालेलुया। और क्या कहता है प्रभु, प्रभु क्या कहता है, हालेलुया। प्रभु कहता है, इसी वचन में आगे चलें। हालेलुया। मेरे को रोशनी भी कम मिल रही है, खैर। प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है उनसे सीखो, मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। मैंने अहद का संदूक, आर्क ऑफ द कवनेंट, शत्रु के हाथ में दे दिया और फलिश्तियों से मरवा दिया उन्हें। याद करो, मैंने ये किया, प्रभु कहता है। एंड नाउ बिकॉज ई हैव डन ऑल दिस वर्क्स सेथ द लॉर्ड, आई स्पेक अनटू यू। प्रभु क्या कहता है, राइज अप अर्ली एंड स्पीकिंग बट ई हर्ड नॉट। प्रभु कहता, सुबह उठ उठ के तुम्हें कलाम दिया पर तुमने सुना नहीं। एंड आई कॉल्ड यू बट यू आंसर्ड नॉट, तुमने मेरी सुनी नहीं। मैं पुकारता रहा, मैं बुलाता रहा, तुमने मेरी सुनी नहीं। देयरफॉर विल आई डू अनटू दिस हाउस which is called by my name, where ye trust unto in this place which I gave to you and to your father, I have done what I did to Shiloh। प्रभु कहता है, ये जगह, इसको तुम बहुत बड़ा एक मैस्कॉट मानते हो, अपना एक एम्बलम मानते हो, अपनी सिक्योरिटी ढूंढते हो ना इस टेम्पल के अंदर। तुम जितने भी गंदे घिनौने काम करो, टेम्पल में आ जाते हो और मेरा नाम लेते हो। तुम सोचते हो यहाँ हम सिक्योर हैं। बहुत सारे लोगों के लिए चर्च ये बन गया है, सेफ हेवन बन गया है। जीवन जैसा भी हो गंदा मंदा, बस उसके अंदर आप जा रहे हो, आपको ब्लेसिंग मिलनी है। पास्टर भी ये सिखाते हैं, सैटरडे को लगा देते थे पहले एडवर्टाइजमेंट, कल रविवार है, चर्च में जरूर आइएगा। प्रभु कहता है, तुम कहते हो टेम्पल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड, लेकिन तुम अधर्मी हो, तुम्हारा जीवन बदला नहीं है। प्रभु कहता, जो मैंने शिलोह में किया, मैंने उसको दुश्मनों के हवाले किया, वैसे ही मैं अब तुम्हें भी दुश्मनों के हवाले करने जा रहा हूं। किन्हें? इसराइल को। इसराइल को पहले कर दिया उसने, 10 गोत्रों को, 722 बीसी में। अब लगभग 120 साल के बाद यहूदा और बेंजामिन को भी करने जा रहा है। तो प्रभु क्या कहता है आगे सुने, देयरफॉर मैं वही करूंगा जो मैंने शिलोह में किया। एंड आई विल कास्ट यू आउट ऑफ माई साइट एज आई हैव कास्ट आउट योर ब्रदरन, इवन द होल हाउस ऑफ इफ्राइम। यहां बता रहा है, इफ्राइम का मतलब है जो इजराइल के नॉर्दर्न किंगडम के 10 गोत्र। कहता मैंने उनको अशूरियों के हवाले कर दिया, गुलामी में चले गए वो 722 बीसी में। अब तुम्हें भी भेजने जा रहा हूं। देयर फॉर प्रे नॉट दाओ फॉर दिस पीपल। सबसे बाइबल में खतरनाक आयत ये मैं पाता हूं, सबसे स्केरी, सबसे फ्राइटनिंग, सबसे डराने वाली आयत है ये। क्या कहता प्रभु, देयर फॉर प्रे नॉट फॉर दीज पीपल, नीदर लिफ्ट अप cry for prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear thee। क्या कहता है प्रभु, 16 वचन सबसे खतरनाक वचन है, यिर्मयाह 7 का 16। प्रभु कहता है, इन लोगों के लिए प्रार्थना अब मत करना, इन लोगों के लिए गिड़गिड़ाना मत मेरे आगे, इन लोगों के लिए मध्यस्थता मत करना, क्योंकि अब मैं सुनूंगा नहीं। इज़राइल वो लाइन लांग गया है, अब नो रिटर्न है, अब इज़राइल वापस नहीं आ सकता। भाई और बहनों, बहुत से विश्वासी ये लाइन लांग रहे हैं। ये लाइन मत लांघिए, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। प्रभु खुद कह रहा है,
कहता डोंट इवन प्रे, डोंट इवन प्रे फॉर आई विल नॉट हियर, मैं नहीं सुनूंगा। ये वो लोग हैं जो टेंपल में आराधना करते थे, हैकल के अंदर। और ये वो लोग हैं जो हैकल के अंदर जाके क्या कहते थे, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, होठों से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं पर इनका दिल मुझसे दूर है। और ये दम भरते थे, ये हमारा टेंपल है, ये हमारी हैकल है, ये यहोवा का घर है, सनातन का यहोवा यहाँ वास करता है, प्रभु हमारे मध्य में। जीवन में पाप, अधर्म और गंदगी भरी थी इनके। इनका मॉरल जीवन, नैतिक जीवन सही नहीं था। इनका सामाजिक जीवन में न्याय नहीं था, झूठ फरेब ठगी करते थे। और आत्मिक जीवन में हर तरह के घिनौने गंदे मूर्ति पूजा के पाप करते थे। मॉरल लाइफ में हर तरह के व्यभिचार और गंदे काम करते थे। तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है ये वो लाइन लांग गए हैं, अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। ये वो लोग हैं जो दम भरते थे कि मेरा नाम लेने वाले लोग हैं। ये बाइबल की सबसे डिस्टर्बिंग आयत है, सबसे डिस्टर्बिंग आयत। ये वो लोग हैं, ये भाई और बहनों बैबिलोनियन नहीं है, अशूरी नहीं है, मादी पारसी नहीं है, ये मिस्री नहीं है, ये कनानी, हित्ती, गिरगिशाइटी नहीं है, ये यहोवा का नाम लेने वाले लोग हैं। प्रभु नबी को कहता है इनके लिए प्रार्थना मत करना। ये कहते थे ये ट्रू जिंदा खुदा की आराधना करते हैं। प्रभु कहता है ये टेंपल 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 करते थे, मंदिर 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 करते थे। आपको मालूम नए नियम में 7 बार यीशु मसीह की कलीसिया को टेंपल ऑफ गॉड कहा गया है। आज भी लोग चर्च 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 करते हैं, चर्च 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 करते हैं, है ना। आपको मालूम वेस्ली भाइयों ने, जॉन वेस्ली ने खास करके जब इंग्लैंड में प्रचार करना शुरू किया, उनको चर्च के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनका पैगाम यहोवा की ओर से था। चर्च को अपना एजेंडा चाहिए, चर्च को अपने प्रोग्राम चाहिए। आपको मालूम लौदीकिया की कलीसिया, आखिरी कलीसिया, आप और मैं लौदीकिया की कलीसिया हैं। आपको मालूम यीशु मसीह कहाँ है, प्रकाशित वाक्य 3:20। उस आयत को प्रचारक लोग अन्य जाति के लोगों को सुनाते हैं। यीशु मसीह कहता देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। वो अन्य जाति के लिए नहीं है, वो कलीसिया के लिए है। आपको मालूम लौदीकिया की कलीसिया तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, यीशु मसीह को चर्च के बाहर कर दिया ईसाइयों ने। पादरियों ने अपने प्रोग्राम चलाने हैं, अपने अपनी अपने एजेंडाज हैं, उनकी उनकी अपनी मिनिस्ट्री है, उनकी अपनी प्रोग्राम्स हैं, वो चलाना चाहते हैं। यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया। यीशु मसीह बाहर खड़ा खटखटा रहा है, चर्च के अंदर नहीं है। यीशु मसीह उस कलीसिया को पता क्या कहता है, कहता तू अंधा है, तू दरिद्र है, तू नंगा है, तू तू रेचेड है, कहता तू घिनौना है, मैं तुझे मुंह से उगलने वाला हूं। यीशु मसीह बाहर खटखटा रहा है, जिसकी कलीसिया है, जिसका घर है, उसे बेघर किया है। और उस आयत को आप अन्य जाति को सुनाते हो कि दिल का दरवाजा खटखटा रहा है यीशु मसीह। अरे भाई वो तो आपको कह रहा है। प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है, आपको मालूम उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, उनको चर्च में नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो चर्च के विरोध में प्रचार कर रहे थे। आप पढ़ के देखें, आप पढ़ें रेफर्मेशन का टाइम, जब रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ बगावत हुई, जिसे रेफर्मेशन कहते हैं, उन्होंने चर्च को बताया तुम्हारे गंदे काम, तुम्हारे घिनौने काम। जॉन वेस्ली ने बताया चर्च ऑफ इंग्लैंड को उनके गंदे घिनौने काम। आज आप मीठा मीठा प्रचार करना चाहते हो, आप कहते हो दोष मत लगाओ। कौन सी तालीम सुनते हो आप, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा गया दोष मत लगाओ। पढ़ो कलाम को, भाई और बहनों ध्यान से पढ़ो। तिमोथी को प्रेरित पौलुस ये बता रहा है, मुझे ये संदेश सुबह कल पूरा करना पड़ेगा। तिमोथी को क्या बता रहा है प्रेरित पौलुस, प्रेरित पौलुस यिर्मयाह से सीख रहा है कि ऐसा होता है और ऐसा होगा। जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में होगा। फ्यूचर उन्हीं लोगों को समझ आएगा जो पास्ट को जानते हैं। जो प्रोफेसर प्रोफेसर पापा करते हैं उनको कुछ नहीं पता होगा। जो जानते हैं परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के राहों को, परमेश्वर के मार्गों को, जो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, सहभागिता करते हैं, केवल उन लोगों को पता होगा भविष्य। प्रेरित पौलुस कहता है अंत के दिनों में, तीमुथियुस की पत्री में, यही होगा, यही होगा। भाई और बहनों सुन लीजिए, बहुत बड़ा
ब्रह्म का रूह पृथ्वी के ऊपर उतरा है, जिनके अंदर रोशनी जल रही है। ये रोशनी आएगी तेल से, पवित्र आत्मा की हजूरी से। ये रोशनी है यहोवा का सच्चा कलाम। तोरा इज द लाइट। ये कलाम रोशनी है। अपने गंदे घिनौने कामों का परित्याग कीजिए। डबल लाइफ जीना बंद कीजिए। भागिए मत अच्छी अच्छी लुभावनी शिक्षाओं के पीछे। बड़े लोग भाग रहे हैं ऐसे ही। यहीं से उठा लिया एक स्लोगन किसी मिनिस्ट्री का, वहां से उठा लिया जो अच्छा लगता है मन को, चेप दिया फेसबुक पे। भाइयों और बहनों, मत धोखा खाओ और मत दूसरों को धोखा दो। पढ़ो ये सच्चा कलाम। प्रेरित पौलुस बता रहा है, जिर्मिया को यहोवा कहता, अब इनके लिए दुआ मत करना क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। प्रेरित पौलुस बता रहा है, वो सत्य से अपने कान फेर लेंगे और विनाश की ओर चले जाएंगे। उनके लिए प्रार्थना मत करना। प्रभु खुद कह रहा मैं नहीं सुनूंगा। आई विल नॉट हियर। तो मुड़े प्रभु की ओर, अभी समय है। मुड़े सच्चे हृदय से, पूरे रूह जिस्म जान को उसके चरणों में अर्पण करें। धन से ना प्यार करें। नोटों से बहुत प्यार करते हैं आप, संसारिक चीजों से। यहीं रह जाएगा सब कुछ। यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी में धन मत जो प्रभु के काम में लगाओ। गरीबों को दो, अनाथों को दो, विधवा को दो, लाचारों को दो, सोजर्नर को दो। यीशु मसीह की इंजील में बीज दो पैसा, सुसमाचार में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं जितनों ने आज तेरा वचन सुना, प्रभु इनके जीवन रूपांतर हो, सचमुच में रूपांतर हो। प्रभु ये उस पॉइंट पे ना पहुंच जाएं जहां पे प्रभु कहे तू प्रार्थना मत करना क्योंकि मैं सुनूंगा नहीं। और सचमुच यहोवा ने नहीं सुनी, वो विनाश की तरफ चले गए। परंतु प्रभु, मैंने तेरा ये सच्चा वचन इन लोगों को बताया ताकि ये प्रभु तेरे चरणों में जुड़ जाएं, तेरी हजूरी में जुड़ जाएं। प्रभु, कानों की खुजली ना मिटाते रह जाएं, नए नए गुरुओं के पीछे ना भागते रह जाएं, तेरे सच्चे कलाम के संग जुड़ जाएं। कहीं कान ना फेर ले तेरी सच्चाई से। तेरे जीवित वचन प्रभु, उनकी रोशनी ही इन्हें स्वर्ग ले जाएगी। जब दूल्हा आएगा, तुरी फूकी जाएगी, वही लोग उठाए जाएंगे जिनकी कुपियों में तेल भरा और रोशनी निकल रही है। दूल्हा उन्हें ले जाएगा। भाई और बहनों, आप भी तैयार हो जाओ और कलीसिया को तैयार करो। ये समय है सच्चा कलाम लोगों तक पहुंचाने का। मैं ये काम में लगा हूं। मुझ पे आक्रमण किया शैतान ने, ये देखिए मेरी आंख कैसे चंगी कर दी, पूरी खून से भरी हुई थी ये। सुनीता कौर जी ने इंग्लैंड में देखा एक रोआ कि जैसे चाकू मारा। इब्लीस रोकना चाहता है उसके सच्चे काम को, लेकिन यहोवा हमारी ढाल है। उसके सच्चे काम में लग जाइए। हालेलुया। अपना तन मन धन यीशु मसीह को अर्पण कीजिए।